हाय मैं अक्षत कुमार, आप मेरे साथ देख रहे हैं तेरे इश्क में का प्रेस कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे क्या हुआ, धनुष और कृति ने क्या बताया, इसके डायरेक्टर आनंद एल राय ने क्या बताया और मीडिया से कैसे इंटरेक्शन हुआ, आइए देखिए। You are not so frequent in this pan India terminology. You are not frequent here in the press conferences or in Mumbai. Last I see you come for Kubera in Mumbai. So it's a conscious decision that you choose only Anand sir, few films for the pan India audience or the promotion. I just luck by chance types. See, I only go by the script. I don't see whether it's in English or Hindi, Tamil, as well. That's not how I choose a film. Mostly it's just the script. But also Anand sir is a very difficult man to say no to. Oh, nobody will believe it. Very difficult man to say no to. Full sentence was difficult. Very difficult man to say no to. इसका सेंटेंस आपकी किरदारों की तरह कॉम्प्लिकेटेड था। So when he calls you, like either Atranveere or this one, Tere Ishq mein, I didn't even know the whole script when he called me. I said yes first, and then I heard the script. That's the kind of bond I have with him. He's a brother. He's like a father figure to me, and so when Anand calls, it's that is it. There are no more discussions, but it's not a conscious decision, definitely not. But I'm just doing the best of the scripts that comes my way. कहानी एक डेप्थ के साथ एक लव स्टोरी सुनाने का था और वो ही पूरा किया। बट हाँ, कहीं ना कहीं प्यार आपको तोड़ता भी है, कई बार आपको जोड़ भी देता है। तो इस कहानी में इसने एक रास्ता वो वाला चुना, पर इसके बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बात करूँगा कि ये तो 3 मिनट में आप जो देख रहे हैं, उसके बाद जो आप 2-2.5 घंटे में देखेंगे वो अलग है। अब मैं ट्रेलर की भाषा में अगर बोलूं, अब इतनी सुंदर लड़की का हाथ उठा है तो किसी गाल पे पड़ना ही चाहिए। पहले तो इस डायलॉग के लिए तालियां होनी चाहिए। चला दो यार। चलो सो कृति, कमिंग फ्रॉम धनुष, दिस लाइन, धनुष क्या था, अपने एक उसमें रहते हैं, सीरियसनेस ऑरा में रहते हैं, ऐसे फर्स्ट टाइम जब इन्होंने ब्रेक किया नहीं? अरे ये चाहते नहीं मैं बोलूं। नहीं, ये दिखाते हैं कि ये बहुत सीरियस रहते हैं, बट एक्चुअली he has a very good sense of humor and मैं सीरियस सीन के बीच में सीरियस हो जाती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सीरियस नहीं होते हैं। So इनका ऑरा बिल्कुल वैसा है नहीं। He really is joking around. As soon as the director says cut, he's out of it completely, which is magical to do. Hats off to him. I can't do it. I can sometimes do it, but mostly not. Yeah. Alright, so Dhanush, usually when we are in love, they fly in the sky, I right? think you also use this one. When boys are in love, they fly high in the sky. But in your case, as per the film, you got heartbroken and then you decided to fly in the sky. So like, how do you get such unique perspectives? I think it's more like the writer's perspective than mine. We're just simply following the script. Yeah, it's as simple as that. And whatever is there, like Himanshu's writings usually becomes very difficult to. It's very complicated. He never says a simple story. It's always a complex, complicated story. And in this case, he's decided that I fly after a heartbreak. Alright. So one last question before I open it for the media. Thank you. एक डायलॉग है आपका फिल्म में, मैं तुम्हें एक अच्छा नॉन वायलेंट इंसान बना दूंगी। तो क्योंकि हम दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली के लड़कों का एक सवाल है कि ऑलरेडी मार्केट में इतने स्वीट नॉन वायलेंट लड़के हैं, तो आपको एक वायलेंट लड़के को नॉन वायलेंट बना के उसी से प्यार क्यों करना है? वायलेंट लड़के भी हैं यार, किसने बोला है? तुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है? बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये दिल्ली की फील से ही लिया है। हर तरह का जज्बा है, स्वीट वाला भी है, ऐसा वाला भी है। और हाँ, कभी कभी लड़कियों को लगता है कि वो बना सकती हैं, पर होता नहीं है ऐसा। बट फर्स्टली आई हैव टू से, जैसा कि आनंद सर ने भी बोला, मुझे भी दिल्ली आके हमेशा बहुत अच्छा लगता है, घर वाली फीलिंग आती है।
और अभी मैं बोल रही थी इनको कि दिल्ली के ऑडियंस कैसे भी आप ऑडियंस कम है ज़्यादा है थिएटर भरा है नहीं भरा है, जो कमेंट्स आते हैं ना बीच में वो इतने मज़ेदार होते हैं यार, मतलब मूड अच्छा कर देते हैं. आई लव डूइंग द बैंटर, जस्ट सिटिंग हियर विद यू गाइस. एंड दिल्ली में ही हमने शूटिंग भी की है और हम लोगों ने काफ़ी खाया है यहाँ पर. हमारे बीच में कंपटीशन होता था. आनंद सर जो हैं वो बहुत बड़े फूडी हैं, शायद मुझसे बड़े फूडी हैं, और इन्हें बहुत मज़ा आता है खाना खिलाने में कहीं कहीं जगह से, और ये बताते नहीं है कहाँ से लाए हैं, कभी नहीं बताएंगे कि कहाँ से लेके आए हैं खाना. और इस बार इनका पाला एक दिल्ली वाली से बड़ा था और हम लोगों ने एक्चुअली शूटिंग के दौरान कंपटीशन किया था कि कौन अच्छा खाना लेके आता है कोई अच्छी जगह से. अगर बहुत बढ़िया हुआ तो पॉइंट मिलेगा, और हम एक्चुअली ये शूटिंग के दौरान ये पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे थे. हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन वहाँ था कि आज लंच पे क्या है, और इसको पता भी नहीं चला मैंने इसे जानबूझ के जीतने दिया ताकि खुश रहे. दिल्ली बॉय. इनका दिल एक्चुअली वहाँ टूटा है, हमारा फिल्म में टूटा है, इनका वहाँ पे टूटा है. सर आप उड़ने मत चले जाना अभी बस. तो आप इला के पास जाओ. Hi Dhanush. Hi Kriti. Hi. Hello sir. Yeah, so first of all, lovely trailer. And my question is from Dhanush and Kriti both. First of all, Dhanush, I would like to know what is the most craziest thing you have done in this film. And you know, what is the thing that you did in Tere Ishq Mein that surprised you as well? Craziest thing as such, I mean, yeah, the craziest thing would be, we shot most of the film in Delhi. So I was styled different before. So they gave me nice thick clothes, jackets and everything. For some reason I didn't feel it for Shankar. Then I told him, no, I don't want these clothes. I don't feel like Shankar. I want just a shirt, simple shirt. And that's the craziest thing I did because I feel cold very easily. So I put myself in that situation. But you were very smart because you knew that we were starting in Feb or March and winters are going to end, and then I shot in the winter clothes in summers after that. So he was actually very looking ahead of time. That was not the plan, but it it happened as such. But even I got stuck in very cold weather. But that's the craziest thing I would say. And other than, what was your second question? What is the thing that surprised you in Tere Ishq Mein? No, see, I know Anand Rai, I know Himanshu. When Himanshu is writing, I know what he has in his mind. When Anand Rai is directing, he puts up a frame. I know what's in his mind. So for me, there are no surprises. I mean, we were fulfilling each other exactly what we wanted from each other, and it's there. What we wanted is there. So there are no surprises. I'm just very happy with the. Actually, I'll tell one thing. That surprises. We go to him to get surprised. He will never get surprised. I think he's done a lot. इनके पास कहानी इसलिए पहुंचती है so that we can get this surprise. So we were like excited to see him performing those scenes, and so there is no limit with him. You can challenge him to at any extent. So that's the fun for any writer or director, that he's got an actor where you can put it and fly with him. And Kriti, you yourself is a Delhi girl. You have studied here, and for this film you shot in Delhi as well. तो शूटिंग के टाइम पे ऐसी कोई कॉलेज मेमोरी कुछ ऐसा है जो आप शेयर करेंगी, ऐसी कोई कॉलेज लव स्टोरी जो आप शेयर करें जो while doing the shoot? यार मेरा ना एक अधूरा सपना जो है वो पूरा हो गया. आई हैव स्टडीड इन जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो वो जो कॉलेज वाली फील होती है ना, दिल्ली के ड्यू कैंपस वाली फील, नॉर्थ कैंपस वाली फील, मैं बहुत जल्दी थी अपनी बहन से, because she's had that life, college life. I used to be in a uniform, really studying like a crazy person, doing engineering in somewhere in Noida. So I think I missed having that college life. And when Anand sir told us that we were shooting in DU, I think I was so excited because I've never seen that college life. So yeah, that one dream got fulfilled.
Sorry, I know you expected a love story answer. I didn't give you that. Hi Kriti, hi Dhanush, hi Anand sir, Damini this side from punjabkesi.com. मेरे दो सवाल हैं. पहला सवाल है कृति से कि अक्सर फिल्में हमें दो चीज़ रोमांटिक फिल्में ज़्यादा करके सिखाती हैं. या तो हम प्यार में मोस्टली सैक्रिफाइस करना सीखते हैं, जो हमने कई फिल्मों में देखा है. ये फिल्म हमें प्यार में, ये फिल्म हमें नफरत में हद पार करना सिखाएगी या फिर प्यार में हद पार करना सिखाएगी? देखो, जो नफरत है ना, उसके पीछे भी प्यार ही है. तो ये फिल्म, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की, स्पेशली आजकल की जो जनरेशन है, हम या तो प्यार में बिलीव करना हमने बंद कर दिया है, या हम बहुत जल्दी हम राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप में ही अटक गए हैं. मैं नहीं अटकी हूँ, मैं नई जनरेशन की बात कर रही हूँ. एंड आई रियली फील दैट आई क्रेव for those stories that make you believe in passionate love that is beyond any logic, that is beyond, anything else in life. That's just there, and it can also lead to heartbreak, and it can also change your life, complete life. जहाँ शंकर चेंज होता है, वहाँ मुक्ति चेंज होती है. कहाँ से शुरू होते हैं, क्या बन जाते हैं. सो वो एक स्टोरी है. और दर्द है, प्यार है, नफरत है, गुस्सा है, डर है, सब कुछ है. सो आई थिंक ये वो सारे इमोशंस जो डीप वाले हैं ना, जिन्हें हम कभी कभी महसूस करने से डरते हैं, वो इमोशंस वापस लेके आएगी. सेकंड सवाल मेरा धनुष जी से है कि मैं चाहती हूँ कि आज आप यहाँ पे कृति लेकर कोई ऐसा सीक्रेट रिवील करें जो आज तक उन्होंने फैंस से हाइड करके नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ. अरे मैं भी जानना चाहती हूँ. बहुत टाइम से जानता हूँ, ये नहीं करेगा. Any secret of mine that you can reveal which you think people don't know? I actually don't know. If I did, I would have told you, but I really don't know. Anand sir. Yes, she eats a lot. For what? That I can tell. Yes. I mean, I got a permission to say. आनंद सर, मैं श्री न्यूज़ 24 से. जब आपने 1 साल के आसपास पहले आपको पहली झलक दिखाई तेरे इश्क में की, तो आपने एहसास कराया कि 12 साल के बाद कुंदन जो है वो एक नए फॉर्म में आ रहा है, शंकर बन के. फिर टीजर में भी हमको फील हुआ कि ये डिस्ट्रक्शन की कहानी है, प्रेम में मृत्यु है, मुक्ति नहीं. लेकिन जब ट्रेलर देखते हैं तो पूरे जज्बात बदल जाते हैं, इमोशंस बदल जाते हैं. पहले फ्रेम में शंकर जो है कुछ और प्यार में बन के निकलता है, एक लेफ्टिनेंट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन के निकलता है. तो ये इसका पहली फिल्म रांझना का ये एक्सटेंशन है, या ये हम एक अलग तरीके की फिल्म देख रहे हैं जहां वो शंकर और कुंदन और शंकर में कोई फर्क नहीं. तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ. कई बार ना कहानी का एक्सटेंशन नहीं होता, आपके खुद का एक एक्सटेंशन होता है. आप हर साल, हर दशक आप इवॉल्व होते हैं, आप बड़े होते हैं. कुंदन और शंकर जो किरदारों में आपको दिख रहे हैं, वो उनसे ज्यादा मेरे से आता हुआ और हिमांशु से आता हुआ. वो कहानी का मोड है जिसकी हम बात कर रहे हैं. हम कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहे, हम लोग उस कहानी की बात कर रहे हैं कि आज से 13-14 साल पहले हम जो महसूस करते थे फिल्म बनाते वक्त, प्यार के बारे में, उन जज्बातों के बारे में, और अब जो हम महसूस करते हैं, जो हमारे अंदर एक बदलाव आया, उस बदलाव में कुंदन से शंकर हो जाना, ये हम लोगों की अपनी जर्नी की कहानी, रेदर देन जस्ट अबाउट द स्टोरी. सो हाँ, बिल्कुल, अगर मैं बोल रहा हूँ कि शंकर ऐसा है और कुंदन वैसा था, इस कहानी में अगर मैं आपसे बोलूं कि जो चीज़ मेल खाती हुई है कि हाँ, इस कहानी की प्योरिटी प्यार को लेके सिमिलर होगी, इसका रेज जो है वो सिमिलर होगा, इसका एग्रेशन जो है वो सिमिलर होगा. बाकी हाँ, 10 साल में जो हम बदले उतनी कहानी बदले. वो फील इसलिए ज्यादा है, बनारस का लड़का हूँ तो वो वाला फील आता है कि मैं शंकर से, कुंदन से बहुत जुड़ा था. तो एक फरहान अख्तर जब
अभी अपनी फिल्म 120 बहादुर प्रमोट कर रहे थे, उन्होंने एक सवाल का जवाब मुझे दिया था कि हम ऐसे हीरोज को हम हीरोज को हीरोज की तरह प्रेजेंट करना भूल रहे हैं। वो जो लड़की से बदतमीजी करता है या बात करता है या एग्रेसिव होता है, जिसको हम बात पहले फिल्मों में और कहानियों में, क्योंकि फिल्मों का असर बहुत होता है, हम उसको पिटते हुए देखते थे, हम उसको लास्ट में देखते थे कि वो विलन है और हीरो और हीरोइन उसको पीट रही है या उसके साथ जो डिफरेंस हो रहा है, अब हम उसको हीरो के तौर पे देख रहे हैं। ये कहानियां, मैं शंकर का एग्रेशन जो है या कुंदन का एग्रेशन जो था, वो हीरो, हम उसको वो किस तरह से हीरो का एक्ट्रेस का पीछा करता है या उसको अपने ओर खींचने की कोशिश करता है, तो क्या वो हीरो है या वाकई हमारे लिए हीरो की डेफिनेशन बदल रही है? तो मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ से आप हैं, बनारस से। आपके साथ रांझना है अभी का, और वो आपको उसमें बनारस का लड़का पसंद आया, तब भी कुछ लोगों ने उसको, उस लड़के के प्यार को, जब वो फिल्म चल रही थी तब नहीं, जब वो फिल्म खत्म हो गई, वो कहानी खत्म हो गई, वो बाहर आए और उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, हम सोसाइटी में रहते हैं, एक सोशल वो चीज़ भी होनी चाहिए, तब किसी ने मुझे बोला कि वो स्टॉकिंग थी। और तब तक मुझे भी नहीं पता था, शायद उन 2 घंटे में उन्हें भी नहीं पता चला, पर बाहर